हिंदू बेटी की सुरक्षा के लिए मुसलमानों की दुआ। यूक्रेन और रूस की जंग में फंसी बीजापुर के अलम प्रभु मठ की बेटी के लिए शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके घर पहुंचकर मस्जिद की जगह उनके घर के आंगन में नमाज पढ़कर उनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए सारी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर स्वामी जी की बेटी की सुरक्षित वापसी की अल्लाह से दुआ मांगी। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर इमारत वाले ने बताया कि इस खास दुआ के ज़रिए बीजापुर की बेटी विविधा की यूक्रेन से सुरक्षित घर वापस आने की अल्लाह से दुआ करते हुए दुआ मांगी गई है। विविधा सिर्फ अलम प्रभु की बेटी नहीं बल्कि बीजापुर की बेटी हैं। विविधा के साथ साथ जितने भी भारत के बच्चे मुश्किल में हैं उन सब की सुरक्षा की भी दुआ मांगी गई। इस मौके पर मौजूद एडवोकेट आसिफ कादरी ने भी दुआ करते हुए बताया कि आज हम भगवान और अल्लाह से एक होकर बीजापुर की बेटी विविधा की सुरक्षा की दुआ मांग रहे हैं। अगर इंसानियत नहीं रहेगी तो ना मंदिर में घंटी बजेगी और ना मस्जिद में अजान सुनाई देगी, जिससे हमको ये संदेश मिलता है कि ये हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि इंसानियत का सवाल है, जो गंदी राजनीति के ज़रिए हम सबको जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है। अनेकता में एकता, यही तो भारत की पहचान है। और चाहे जितना भी बांटने की कोशिश करें हम बटेंगे नहीं। आपस में हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे का संदेश दिया जिम्मेदार लोगों ने। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಿ। ಮಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರ ಆಗ್ಯದ, ಆ ಭಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೇವೆ ಆ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಜೀವನದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತವರೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂಥ ಆಕೆ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಕೊಡಲಿ ದೇವರು। ಮತ್ತು ಆಕೆ ಏನು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರಿ, ಆಕೆ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ। ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಭಗವಂತ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲಿ। ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಅದು ಬಗೆಹರಿಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರ ಅವರು ಸೇಫಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಾಡಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಾದಂಥ ವಿವಿಧಾಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಮಾಜ್ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇನದ ಹುಡುಗಿ ಸಂಬಂಧ ಏನದ ಇಲ್ಲೇ ದುವಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೂತಿ ಬಿಟ್ಟೇವ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನದ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ದುವಾ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿಲ್ಕೊಂಡಾವ ಅವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ। ಅದು ನಾವು ದುವಾ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ। ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫಾಗಿ ತಾಯಿನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಗುರುಜಿ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾವೆ। الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك
वज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या रहमान रहीम या रहमान रहीम या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या राहिमुल मसाकीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या ज़ुल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए अल्लाह रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा, गैब से मदद का, नुसरत का, आखिरत का मामला फरमा। मौला करीम हम जितने लोग दुआ के लिए हाथ उठाए हम सब की मग़फ़िरत फरमा। मालिक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर। परवरदिगार तेरे फजल करम से परवरदिगार जो बच्ची हमारे स्वामी जी की विविधा यूक्रेन में फंसी हुई है, मौला करीम हर एतबार से उसकी हिफाजत करते हुए, उसकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करते हुए मौला करीम उसे हमारे मुल्क को पहुँचा दे, उसे अपने मायके में पहुँचा दे, उसे उसके घर में पहुँचा दे, उसे उसके माँ बाप के आगोश में पहुँचा दे। मौला करीम जो बोझ और वज़न उसके माँ बाप को हो रहा है, जो फ़िक्र उनके माँ बाप को हो रही है, अल्लाह उनकी फ़िक्र को दूर फरमा दे। अल्लाह उस बच्ची को हिफाजत के साथ मौला करीम को हमारे यहाँ पहुँचा दे। या अल्लाह सब तेरे ही बंदे हैं, अल्लाह सब तेरे ही बंदे हैं, हम सब तेरे ही बंदे हैं। अल्लाह तेरे फजल करम से हमारे ऊपर, हमारे हाल पर रहम फरमा, करम फरमा, गैब से मदद का, नुसरत का, आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह जंग को ख़त्म फरमा, जंग मसाइल का हल नहीं है। या अल्लाह जंग मसाइल का हल नहीं है, जंग से और मसाइल पैदा होते हैं। मालिक यूक्रेन और रसिया के दरमियान में जो जंग हो रही है, बेशुमार अल्लाह शहरियान, या अल्लाह बेगुनाह शहरियान मारे जा रहे हैं, परवरदिगार जायदादें जल रही हैं, या अल्लाह नुकसान हो रहा है, बर्बादियाँ शोर मचा रही हैं। मौला करीम तेरे फजल करम से जंग को ख़त्म फरमा दे और हमारे जो हिंदुस्तान के बच्चे खुसूसन यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मालिक सब के जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा दे। खुसूसन बिलखुसूसन विविधा की जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत फरमा दे। मौला करीम हमारे मुल्क को पहुँचा दे, मौला करीम उसके माँ बाप के घर में पहुँचा दे। या अल्लाह तेरे फजल करम से हर एतबार से उसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार माँ बाप के दिल को सुकून अता फरमा, अल्लाह माँ बाप के दिल को चैन अता फरमा, मालिक सुख शांति अता फरमा। मालिक हमारी दुआओं को तेरे लुत्फ़ करम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हम सब मुसलमान कम्युनिटी के लोग स्वामी जी की जो बेटी इसमें यूक्रेन में जो फंसी हुई है, या दूसरे और बच्चे, लड़के और लड़कियां जो वहाँ जो फंसे हुए हैं, उनके लिए दुआ करने के लिए, या अल्लाह की रहम या उसका करम तलब करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। मगरिब की नमाज़ यहीं पे पढ़े हम, और स्वामी जी को भी मिले और बच्ची की कैफियत के बारे में भी हम सब मालूमात हासिल किए। हम सब की यही ख्वाहिश है नुविदा और उसके जितने भी साथी वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो सब अपने अपने घरों को पहुँचे। अल्लाह अपने लुत्फ़ व करम से उनको बीजापुर तक या उनके शहरों तक पहुँचाए। उसके अलावा जहाँ भी हिंदुस्तान में जो भी गड़बड़ होती है या अनपीसफुल माहौल बनता है, हर बार मुसलमान का यही किरदार रहा है कि अल्लाह से रुजू होते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं। वही काम के लिए हम यहाँ तक स्वामी जी के घर को पहुँचे और उनके साथ हमदर्दी का मामला हमारा रहा, और यही हम दुआ कर रहे हैं कि वो बच्ची भी यहाँ पे पहुँचे, अपने माँ बाप से मिले और एक अच्छा मैसेज मुसलमान लोगों से दूसरे कौमों तक पहुँचे। यही नीयत से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा ये भी मुझे मालूम हुआ कि स्वामी जी भी ख़ास करके हमारे लोगों के साथ बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत अकीदत के साथ वो मिलते जुलते रहते हैं, उनके कामकाज करते रहते हैं। ये सब हमें मालूम हुआ। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि उनके हर तकलीफ़, हर मुसीबत वो अल्लाह ताला दूर करे। ये ऐसे आजमाइश होते रहते हैं, माँ बाप के लिए आजमाइश हैं, ऐसे आजमाइश हर कौम के लिए भी होते रहते हैं। मुसलमानों के लिए भी एक आजमाइश है, दूसरे कौमों के लिए भी आजमाइश है।
मगर हम अपने जो अकीदत है, अल्लाह पे जो भरोसा है या ईश्वर पे जो भरोसा है, उस पर हम कायम रहें और एक दूसरे के साथ हम मोहब्बत का सलूक रखें। उसके अलावा इंसान का सबसे बड़ा एक किरदार यह है कि वो हमदर्दी के साथ लोगों के साथ पेश आए। ये स्वामी जी का दर्द नहीं, ये हमारा दर्द है और ये हमदर्दी यही ज़रूरत है। हर जो मज़हब है यही हमदर्दी सिखाता है, यही इंसानियत सिखाता है। मैं समझता हूँ आज जो मुसलमान भाई, ख़ास करके हकीम चौक के या बीजापुर के मुसलमान भाई सब यहाँ तक पहुँचे, ये एक अच्छा मैसेज और एक पैगाम बीजापुर के लोगों को, कर्नाटक के लोगों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। आज जो हमारे मल्लिकार्जुन मुत्या स्वामी जी, उनकी बेटी जो यूक्रेन की जंग में उन फंसे हुए थे, आज उनके लिए अपने घर वापसी के लिए एक ख़ास दुआओं का एहतमाम किया गया और मगरिब नमाज का एहतमाम भी यहीं पर किया गया है। क्योंकि आज हमारी तरफ से मुत्या की बेटी का नहीं, आज पूरे देश की जितने भी बेटियां, जितने भी बेटे वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जैसा कि आज हमारा एक भाई नवीन जो स्टूडेंट था वो युद्ध में मारा गया, उसके लिए भी हमारी सहानुभूति है और हमारी यही प्रार्थना है कि सारे आलम के लिए अल्लाह ताला से हमारी यही एक दुआ है कि जंग ख़त्म हो और सारे तमाम जो स्टूडेंट्स 18,000 स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान के फंसे हुए हैं वो सेफली हिंदुस्तान को पहुँचे और बिना किसी ज़ात धर्म के हम सरकार से भी विनती करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनकी कोई ज़ात और धर्म नहीं है। स्टूडेंट्स जो है सिर्फ पढ़ाई के लिए गए थे, अनएक्सपेक्टेड वार डिक्लेयर होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है इमीडिएट उस पर एक्शन ले करके वो बच्चों को घर वापसी लाने का एहतमाम करें। और मल्लिकार्जुन मुत्या साहब की बेटी जो है ये हमारे बीजापुर की बेटी है और कर्नाटक की बेटी है और देश की बेटी है, तो इसलिए आज हमारा एक इंसानी हमदर्दी फ़र्ज़ है कि हम मुत्या के साथ खड़े रहें। और यहाँ पर ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ सवाल इंसानियत और इंसान का है। इंसानियत की मौत हो रही है और इंसान की मौत हो रही है। यहाँ पर वक्त और हालात हिंदुस्तान के भी इतने बिगड़े हुए हैं कि यहाँ पर इंसान और इंसानियत की ज़िंदगी सेफ नहीं है। तो इसलिए हम सब आज हिंदू मुसलमान मिल करके दुआ कर रहे हैं अल्लाह और भगवान से कि इंसानियत बचे और इंसान बचे। अगर इंसानियत ही नहीं बची और इंसान ही नहीं बचे तो ना भगवान के मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला रहेगा, ना मस्जिद में कोई अज़ान दे सकने वाला रहेगा। इसलिए हम सब हिंदू मुसलमान मिल करके यही दुआ कर रहे हैं कि हमारे मुत्या की बेटी घर को सेफली वापस पहुंचे। इसी तरह 18,000 जो स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं सारे सेफ पहुंचे। ये इसके लिए आज हमारे प्रोफेसर इमारत वाले सर, नदाफ सर, फैरोज कक्कड़ मेरी साहब, ये शेख अहमद मोदी, मुनीर अहमद और आबिद संगम, ये सब हम लोग आज यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ करके अल्लाह से खास दुआ किए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करते हुए मुत्या की बेटी को जल्द से जल्द घर को सेफली बुला के मुत्या का दर्शन कराया, उनकी बेटी के साथ उनका दर्शन हो, यही हमारी कामना है। थैंक यू। ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಗಳಾದಂಥ ವಿಗ್ರಹ MBBS ಓದಲು ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆಂದು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವಗಳು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಮಗಳಾದಂಥ ವಿವಿಧ ಕೇವಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಗಳಲ್ಲ, ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗಳು. ಆ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ, ಇನ್ನು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ದೇವರೇ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಮಗಳು, ಈ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡು, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡು. ಈ ನಾಡಿನ ಮಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಗಳಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಲೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. आज जो हमारे मल्लिकार्जुन मुत्या स्वामी जी, उनकी बेटी जो यूक्रेन की जंग में उन फंसे हुए थे, आज उनके लिए अपने घर वापसी के लिए एक खास दुआओं का एहतमाम किया गया और मगरिब नमाज का एहतमाम भी यहीं पर किया गया है। क्योंकि आज हमारी तरफ से मुत्या की बेटी का नहीं, आज पूरे देश की जितने भी बेटियां, जितने भी बेटे वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जैसा कि आज हमारा एक भाई नवीन जो स्टूडेंट था वो युद्ध में मारा गया, उसके लिए भी हमारी सहानुभूति है। और हमारी यही प्रार्थना है कि सारे आलम के लिए अल्लाह ताला से हमारी यही एक दुआ है कि जंग ख़त्म हो और सारे तमाम जो स्टूडेंट्स 18,000 स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान के फंसे हुए हैं वो सेफली हिंदुस्तान को पहुँचे। और बिना किसी जात धर्म के हम सरकार से भी विनंती करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनकी कोई जात और धर्म नहीं है। स्टूडेंट्स जो है सिर्फ पढ़ाई के लिए गए थे, अनएक्सपेक्टेड वार डिक्लेयर होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन ले करके वो बच्चों को घर वापसी लाने का एहतमाम करें। और मल्लिकार्जुन मुत्या की बेटी जो है ये हमारे बीजापुर की बेटी है और कर्नाटक की बेटी है और देश की बेटी है। तो इसलिए आज हमारा एक इंसानी हमदर्दी फर्ज है कि हम मुत्या के साथ खड़े रहें। और यहाँ पर ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ सवाल इंसानियत और इंसान का है। इंसानियत की मौत हो रही है और इंसान की मौत हो रही है। यहाँ पर वक्त और हालात हिंदुस्तान के भी इतने बिगड़े हुए हैं कि यहाँ पर इंसान और इंसानियत की जिंदगी सेफ नहीं है। तो इसलिए हम सब आज हिंदू मुसलमान मिल करके दुआ कर रहे हैं अल्लाह और भगवान से कि इंसानियत बचे और इंसान बचे। अगर इंसानियत ही नहीं बची और इंसान ही नहीं बचे तो ना भगवान के मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला रहेगा, ना मस्जिद में कोई अज़ान दे सकने वाला रहेगा। इसलिए हम सब हिंदू मुसलमान मिल करके यही दुआ कर रहे हैं कि हमारी मुत्या की बेटी घर को सेफली वापस पहुंचे। इसी तरह 18,000 जो स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं सारे सेफ पहुंचे। ये इसके लिए आज हमारे प्रोफेसर इमारत वाले सर, नदाफ सर, फैरोज कक्कड़ मेरी साहब, ये शेख अहमद मोदी, मुनीर अहमद और आबिद संगम, ये सब हम लोग आज यहाँ पर मगरिब की नमाज पढ़ करके अल्लाह से खास दुआ किए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करते हुए मुत्या की बेटी को जल्द से जल्द घर को सेफली बुला के मुत्या का दर्शन कराया, उनकी बेटी के साथ उनका दर्शन हो, यही हमारी कामना है।